الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تجوید کا ریویژن ڈے ہے، اور جتنے بھی ہم نے ابھی تک رول پڑھے تھے ان کو ہم ریوائز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلا ریویو دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے کل کے رول کیے تھے حروف لین کو۔ تو حروف لین کے لیے اس کو سمجھنے سے پہلے میں کچھ نام لوں گی، تو پلیز آپ لوگ ہینڈ ریز کیجئے۔ ارم حمزہ، فائزہ اسحاق، اور مہرین طاہر، ذل ہما۔ جی آپ سب لوگ ذرا ہینڈ ریز کیجئے۔ رابعہ سلمان، جی ٹھیک ہے۔ ارم حمزہ، آپ کے سامنے اسکرین جو ہے وہ ڈسپلے ہوئی ہوئی ہے، آپ یہاں سے حروف لین کو ذرا ایکسپلین کیجئے پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ارم، یہاں پہ ہم لوگوں کو واو لین کی ایگزامپلز نظر آ رہی ہیں۔ واو لین بیسیکلی جس واو کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے زبر آ رہی ہو تو ہم اس کو نرم کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ اس کی ایگزامپلز ہیں، جیسے ماؤ، باؤ، واؤ، پاؤ۔ اس میں ہم لوگوں نے ہونٹ کو گول کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کی چونچ نہیں بنانی ہوتی۔ کس کی چونچ؟ ہونٹوں کی چونچ نہیں بنانی واو ہم، کو بولتے ہوئے، لیکن ہونٹوں کو گول کرنا ہے تاکہ ہم اس کو نرمی ٹھیک سے بول سکیں۔ ٹھیک ہے، اور واؤ ساکن سے پہلے کیا ہوگا؟ زبر ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیں اب اس کو ایگزامپلس کے ساتھ سمجھائیے۔ جی ارم، ایگزامپلس کے ساتھ سمجھائیے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بلد آ رہی ہے نا، تو اس کی جو ہے کچھ آیات ہیں، اس کو آپ ایگزامپلس کے ساتھ سمجھائیے۔ جی سوری، میوٹ ہو گیا تھا میرا مائک۔ اس کوئی میں بات نہیں جی۔ یومن، سو، ہوں تواسو، ہوں یعنی اور جہاں یہ پہ دیکھیں پہلی جو آیت آ رہی ہے لاسٹ وہاں پہ آ رہا ہے فی یومن، تو کیا ہو رہا ہے ارم؟ واؤ ساکن سے پہلے کیا ہے؟ یہاں پہ زبر آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ واؤلین ہو رہی ہے۔ سوری فور ایگزامپل۔ ہوں نیکسٹ میں ہے وتا واسو، تو اس میں واو ساکنہ سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہاں پہ بھی ہم لوگ واو لین کریں گے۔ اسی طرح تھرڈ ہوں ایگزامپل میں بھی ہے وتواسو، تو اس میں بھی ہوں واو ساکنہ سے پہلے زبر آ رہا ہے، اس کو ہم واو لین کریں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں جی یہاں پہ یہ واؤ لین کا ہم نے اس کا رول سمجھ لیا۔ اب ہم آگے جاتے ہیں یا ساکن کا رول۔ ٹھیک ہے، دو ورڈز تھے نا ہمارے حروف لین کے، ایک تھا ہمارا واؤ ساکن اور دوسرا تھا یا ساکن۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے اس کو آپ فائزہ اسحاق آپ کریے۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फाइजा। जी टीचर, या लीन में अगर या साकिन से पहले किसी लफ्ज के ऊपर फतहा हो तो हम उसको या लीन हम्म कहते हैं। और हम्म इसमें थोड़ा सा हों जो है वो नीचे जाता है। जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि अगर हम इंग्लिश का वर्ड दुबई अगर हम लेते हैं तो हम उसको हम्म दुबई नहीं बोलते, दुबई बोलते हैं। हम्म ठीक है। इसी तरह जैसे अभी इसमें है मई, बई, वई, फई। वेरी इसको गुड, मैं नहीं पढ़ेंगे, बै नहीं पढ़ेंगे, वह नहीं पढ़ेंगे। वेरी गुड। मतलब अगर वे या मैं पढ़ेंगे तो वो कौन सी उसको हम क्या बोलेंगे, वो किस तरीके से हमने पढ़ा? वो अगर हम मैं पढ़ेंगे तो वो मजहूल हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन ही उसकी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। जी जी। चलिए अभी इसको एग्जाम्पल से लेते हैं। जी सूरह कुरैश की कुछ एग्जाम्पल आएंगी, या चले सूरह बलद से ही ले लेते हैं। जी बताइए। जी टीचर सूरह फाइजा। बलद से बताएं। जी हाँ जी जी। सूरह बलद इसमें की है बताइए। जैसे आई नाइन, आई नाइन इसको पढ़ेंगे, एन एन नहीं पढ़ेंगे इसको। आई नाइन। हम्म आई इसमें आई। या ली। जी आई नाइन। उसके हम्म बाद है वशफतैन। इसको तैन नहीं पढ़ेंगे, वशफतैन। शाबाश। वहदैनाहु। हम्म और उसके बाद टीचर ये लफ्ज अन नजदैन है, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा, इसके ऊपर सर्कल हुआ बिल्कुल, हुआ है। अब नजदैन, नजदैन। अन नजदैन। जी अन हम्म नजदैन। इसको दैन नहीं पढ़ेंगे, दैन पढ़ेंगे। दैन नहीं पढ़ेंगे, इसको दईन पढ़ेंगे। नईन, दैन पढ़ेंगे जी। दईन, दईन, ठीक है। ये वाली इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। बारकल्लाहु फी इल्मी कवा मलिक फाइजा। अच्छा जी, अभी सूरह कुरैश को भी दिखाई बताइए। जी फाइजा, सूरह कुरैश से भी बताइए, कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको कैसे पढ़ेंगे? जी जिले हुमा आप बता दीजिए। जी जिले हुमा। शाहरुख, आई थिंक इनके माइक जो है अनम्यूट नहीं हो रहे। जी टीचर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जिले हुमा बताइए। जी, इसका जो वर्ड है कुरैश, इसको हम कुरैश करके पढ़ेंगे, कुरैश नहीं पढ़ेंगे या को। शाबाश। हम्म और जो नेक्स्ट है इसको वसैफ पढ़ेंगे, वसैफ नहीं करके पढ़ेंगे। वेरी गुड, आगे। और जो नेक्स्ट वाला है इसको अल बैत करके पढ़ेंगे, अल बैत इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो ये मजहूल हो जाता है वरना। और ठीक है। जो लास्ट है इसको खौफ पढ़ेंगे, खौफ नहीं हम्म खौफ, इस तरह से वेरी पढ़ेंगे। गुड, ठीक है। मतलब सारे हम्म, वर्ड्स जितने भी हैं फिलिंग के, उनकी जो सबसे समझने वाली चीज क्या थी कि उसमें हमने क्या करना है, उसमें क्या करना है? उनको नरमी से अदा करना है। नरमी से अदा करना है। और दूसरी चीज हमने क्या करनी है उसमें, नरमी से अदा करते हुए मजहूल नहीं पड़ना, सबसे जरूरी चीज, हम्म, ठीक है। जी चलिए। अच्छा जी, अभी हम कुछ थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ये सूरह काफ मैंने आपके सामने डिस्प्ले की है। अभी मुझे बताइए, जिले हुमा आप बताइए। जी 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 जिले हुमा मुझे बताइए कि आयत नंबर 2 में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? जी। यहाँ पे हरूफ लीन है, अगर है तो उसको मार्क करें। एक चुका हूँ, काफिर होना शायद है। टीचर इसमें नहीं है हरूफ लीन का लेटर। नहीं है? नहीं। गौर से देखें, यहाँ क्या हो रहा है? शैउन, हाँ जी यहाँ पे हो रहा है, या साकिन है। या साकिना, हम्म, तो कौन क्या बोलेंगे इसको? इसको हरूफ बोलेंगे यालीन, हरूफ या लीन, यालीन बोल। हम्म, ठीक है। अच्छा मुझे जिले हुमा यहाँ बताइए, यहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है जिधर मैंने अभी एरो लगाया? रजउम, यहाँ पे इकलाब हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, राबिया सलमान आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है? आयत नंबर 4 में क्या हो रहा है? जी जी मेरी राबिया, आवाज अपना आ रही माइक। टीचर? जी जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। जी टीचर, यहाँ आयत पे क्या नंबर हो रहा है 4 में हम्म
जी वाइंदना, यहाँ पर इक्फा हो रहा है टीचर। इक्फा हो रहा है, क्यों इक्फा हो रहा है? इक्फा के वाइंदना लेटर इक्फा हम करते क्या है राबिया? इक्फा का मानी होता है छुपाना। हम्म हमारे पास जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इक्फा में से जो वर्ड्स आते हैं उस पे हम लोग इनको छुपा के पढ़ते हैं, जिसमें हम नून की आवाज हम्म को जाहिर नहीं करते। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे यहाँ बताइए राबिया, यहाँ क्या हो रहा है? ये आयत नंबर 6 को मैंने मार्क किया है। एक सेकंड टीचर, मेरे उस पे आ रहा है। आयत नंबर 6 पे देखिए, यहाँ आ, देखिए। कई जी कई फा, यहाँ पर टीचर या साकिन से पहले हमारे पास फतह आ रही है, तो यहाँ पर या लीन हो रहा है हमारे पास। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? व अल क़ैना, यहाँ हम्म यहाँ पे भी या साकिन से पहले फतह आ रही है, तो यहाँ पे भी या लीन हो रहा है। वेरी गुड। यहाँ बताइए, यहाँ क्या हो रहा है आयत नंबर 7 में? ज़ौजिम, यहाँ हम्म पर टीचर हमारे पास इकलाब हो रहा है। नहीं, अच्छा, जी कैसे जी पता चला तनवीन आपको के क्या हो रहा है? तनवीन पे जो टीचर, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है। तनवीन तो है ही नहीं, गौर से देखें। मैं एक सेकंड zoom कर लूं। जी जी यहाँ पे तनवीन नहीं है। आपको कैसे पता चला यहाँ नहीं, पे यहाँ इकलाब पे करना है? क्या साइन है? आ, इकलाब का होता है ना कि जहाँ पर हमारे पास नून साकिन और तनवीन के बाद मीम आता है तो उसमें हम मिलाकर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हम्म पर हमारे पास जो है जो हमारे ये अरबिक मुसहफ होते हैं उसमें वो हम्म, दूसरी तनवीन की जगह उन्होंने मीम साथ लगाया होता है, तो वो अंडरस्टूड होता है कि फिर हमने इसको मिला के पढ़ना है। ठीक है, वेरी गुड। आपको यानी मीम से समझ आई है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये समझ आई है? जी जी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अच्छा हमारा जी, जो आगे पाकिस्तानी चलते हैं। मुसहफ होता है उसमें तो दो जेर उन्होंने साथ, मतलब वो कसरा लगाई होती है ना, तो यहाँ पर हम्म एक की बजाय उन्होंने फिर मीम ऐड किया होता है। हम्म ठीक है, ठीक। अच्छा जी, आगे मुझे बताएंगी महरीन ताहिर कहाँ है? महरीन, आप बताइए मुझे कि यहाँ क्या हो रहा है इस आयत में, आयत नंबर 9 में। महरीन ताहिर, महरीन है क्लास में? टीचर मेरी नहीं है। है। अच्छा, 1 मिनट में होने करती चलो, हूँ। 1 मिनट। जी महरीन को माइक अनम्यूट कीजिए। जी जी महरीन। टीचर, जी अब आवाज आ रही है। आ रही है जी महरीन। यहाँ बताइए, ये जो मैंने मार्क किया अभी आयत नंबर 9 में, यहाँ पे क्या हो रहा है? जी टीचर, यहाँ पर जो है इदगाम हो रहा है क्योंकि तनवीन के बाद जो है हरूफ यरमलून में से मीम है, और हम्म मीम के ऊपर तशदीद भी है, तो हम यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा इस तरह करके पढ़ेंगे, गुन्ना करके अच्छा, पढ़ेंगे। अच्छा। तो इदगाम हो रहा है आपने कहा है, तो ये जो माल हमजा गुन्ना। है, नहीं, ये जो हमजा है ये इदगाम के लेटर्स में से है? टीचर तनवीन को देखेंगे ना हम। लेकिन उसके, ठीक है, तनवीन को देख लिया आपने, फिर उसके बाद ये वाला जो अभी आपने कहा यहाँ पे दो तरह का हो रहा है, ये मीम है, तो अब यहाँ पे कैसे इसको करेंगे, क्या बताएंगे? इदगाम। इदगाम माल गुन्ना। अच्छा, और अगर मैं सिर्फ मुबारकन की तो करूंगी? तो भी माल गुन्ना ही होगा मुबारक, टीचर, क्योंकि यमनु जो है वो माल गुन्ना के लेटर में से है। मोमिन जोमिन वर्ड है, ठीक जी है। जी और दूसरा, अगर जी हमने यहाँ पे इसको मुबारकन खाली देखूंगी तो यहाँ पे मीम मुशद्दद है, तो उस सूरत में मुझे यहाँ पे मीम का गुन्ना करना है बेसिकली, जी ठीक जी है। जी जी बिल्कुल, वो तो मीम का गुन्ना होगा जी। अच्छा, यहाँ बताइए यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे कलकला हो रहा है, बा पर सुकून है। हम्म ठीक तो है, वेरी गुड। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोगों को सारे रूल्स जो जितने भी कराए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसका मुझे समझ मुझे भी आई है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने उसकी एप्लीकेशन की है, वो आज नज़र आ गई है, आपकी रवैयन से नज़र आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करें, कुरान को इसी तरह समझना पढ़ना आसान बनाए, और इसके साथ साथ हमें इस कुरान पे अमल करने वाला बनाए, क्योंकि जिस वक्त हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो उस वक्त हमें समझ आती है और मज़ा भी आता है पढ़ने का कि अब हमने कुछ सीखा। तो इंशाल्लाह ताला हम
ابھی جو ہمارا نیکسٹ ویک ہوگا اس سے ہم نئے رولز کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ابھی یہ والے جو رولز سیکھے ہیں ان کی اپلیکیشن دوبارہ سے اپنے مصحف پہ کیجئے، روز کیجئے، تو آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی وہ ٹرمز یاد ہو گئیں تو پھر تو آپ سمجھیں کہ الحمدللہ کہ ہم نے کچھ اچیو کیا. تو قرآن کا اسلوب یہی ہے، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، فہم کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کے پورے حقوق اور فرائض ادا کرنے والا بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.